فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ریاست میں خواتین کو کروڑ پتی بنانے کے وزیر اعلیٰ کے عزم کے ایک حصے کے طور پر ریاستی حکومت کی چیف سیکرٹری شانتی کماری نے متعلقہ حکام کو خواتین کے خود مدد گروپوں کے یعنی کہ سیلف ہیلپ گروپوں کے ذریعے بسوں کی خریداری، سولار پلانٹ لگانے کے کام کو تیز کرنے کی ہدایت دی اور شلپا رامم میں اندرا مہیلا شکتی بازار قائم کرنا۔ سیکریٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطح میٹنگ میں اندرا مہیلا شکتی پروگرام کے نفاذ کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر سی ایس شانتی کماری نے کہا کہ اندرا مہیلا شکتی کی 22 عمارتوں کی تعمیر کا کام شروع کر کے 8 ماہ میں مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 106 دکانوں پر مشتمل اس بازار کا تعمیراتی کام زور و شور سے جاری ہے اور یہ کام دسمبر کے پہلے ہفتے تک مکمل کر کے افتتاحی تقریب کے لیے تیار ہو جائے۔ اس اندرا مہیلا شکتی بازار میں وہ خواتین کو مختلف ثقافتی اور سماجی پروگراموں کو مستقل بنیادوں پر کرنے کے لیے مالی مدد فراہم کرنا چاہتی ہیں اور آئی ٹی کمپنیوں اور شہر کے دیگر ممتاز تجارتی اور کاروباری تنظیموں کو شراکت فراہم کرنا چاہتی ہیں۔ گاندھی بھون میں ٹی پی سی سی کی وسیع پیمانے پر میٹنگ ہوئی۔ اجلاس کی صدارت تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے کی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا، وزراء سیتکا، تملا ناگیشور راؤ، پونگولیٹی سنواس ریڈی، ارکان پارلیمنٹ ملو روی، چملا کرن کمار ریڈی، ارکان پارلیمنٹ ایم ایل اے، ایم ایل سی، حکومتی مشیر، سینئر قائدین اور ورکنگ گروپ کے نمائندوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ عوامی حکمرانی کے سال کے موقع پر ریاست بھر میں تقریبات منعقد کی جا رہی حلقوں میں تقریبات پر تبادلہ خیال کیا۔ ریاست میں ذات پات کی مردم شماری پر بحث ہوئی۔ پروگرام جو مہیش کمار گوڑ نے ٹی پی سی سی کے صدر کی حیثیت سے 2 ماہ میں انجام دیے، آئندہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ ہفتے کے دوران تلنگانہ میں کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس سے بھی کم رہنے کا امکان ہے۔ سردی کی شدت میں اضافے کے پیش نظر محکمہ صحت نے عوام کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی۔ محکمہ صحت کے مطابق سردیوں کے موسم میں انفلوئنزا کے کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس موسم میں بخار، سردی، زکام اور گلے کی خراش انفلوئنزا کی ابتدائی علامت ہے۔ محکمہ صحت نے حاملہ خواتین، بچوں، بزرگوں اور سانس کے عارضہ سے متاثر مریضوں کو خاص طور پر احتیاط برتنے کی تاکید کی ہے۔ ان افراد کو مشورہ دیا گیا کہ وہ بیمار افراد سے میل جول سے گریز کریں اور سرد ہواؤں میں باہر جانے سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ مناسب نیند، وافر مقدار میں پانی پینے اور غذائیت سے بھرپور خوراک کا استعمال کرنے سے نہ صرف صحت بہتر رہ سکتی ہے بلکہ انفلوئنزا جیسے وائرل انفیکشن سے بھی بچاؤ ممکن ہے۔ محکمے نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے اپنے اور اپنے اہل خانہ کی صحت کا خیال رکھیں تاکہ سردیوں کے موسم میں بیماریوں سے بچا جا سکے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے وی ڈی سی سی روڈ کی احسن و تعمیر، سیوریج لائنوں کے سالار پل، ٹولی چوکی، بغداد کالونی، کمپنی باغ، لنگر ہاؤس، خادر باغ اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا اور معائنہ کیا۔ جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں اور پروجیکٹ عہدیدار اس دوران موجود رہے۔ بعد ازاں ایم ایل اے نے ٹریفک پولیس کے ساتھ لنگر ہاؤس اور رنگ روڈ پلر نمبر 68 کا بھی دورہ کیا اور تمام دکانداروں کو ہدایت کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ ٹریفک چالان سے بچنے کے لیے اپنی پوش کارڈز سفید ٹریفک لائن کے آگے رکھ کر ٹریفک کو بلاک نہ کریں۔ دکانداروں کو قواعد پر عمل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اس معائنے کے دوران ایم ایل اے کے ساتھ مجلسی پارٹی کے کارپوریٹر اور مجلسی پرائمری یونٹ کے صدر اور سرگرم کارکن موجود تھے۔
स्टेपेंडरी कैडेट ट्रेनी पुलिस कांस्टेबल आर्म्ड रिजर्व मर्द के 7वें बैच की पासिंग आउट परेड दीक्षांत परेड साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट परेड ग्राउंड गच्चीबौली में मुनक्किद हुई। एडीजीपी टेक्निकल सर्विस वीवी श्रीनिवास राव आईपीएस तेलंगाना स्टेट ने इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने परेड का मुआयना किया। जनरल सलामी ली और इंडोर सब्जेक्ट आउटडोर ट्रेनिंग फायरिंग और ऑलराउंडर कैटेगरीज में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को इनामात से नवाजा। तकरीब का आगाज सरकारी तेलंगाना स्टेट गीत जय जय तेलंगाना के बजाने से हुआ, जिसने इस मौके पर फख्र और अकीदत का एहसास बढ़ाया। इस मौके पर खिताब करते हुए एडीजीपी श्रीनिवास राव आईपीएस ने तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए शफाफ भर्ती के अमल की सताइश की, जिसने 18,000 ओहदों के लिए 8 लाख से ज्यादा दरख्वास्त दहिंदगान को राग़िब किया। मुंतखब कैडेट्स को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने दयानतदारी, नज़्म ज़ब्त और अज़्म को मुयस्सर पुलिस सर्विस की बुनियाद करार दिया। थैलेसीमिया एंड स्किल सेल सोसाइटी तंजीम के नुमाइंदों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और तेलंगाना में थैलेसीमिया की मौजूदा सूरत हाल और सद्भाव के लिए जीओ की इजराई की जरूरत पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर रामागुंडम के एमएलए माकन सिंह राज ठाकुर और महालक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक तेज नारायण भी मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान TSCS के थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोजेक्ट की पेशरफ्त और असरात पर तबादला ख्याल किया गया, जिसका असर मौजूदा तौर पर 3 अजला में फैला हुआ है। सोसाइटी के अपने हालिया दौरे के बारे में चीफ मिनिस्टर को तहरीरी रिपोर्ट हवाले की। चीफ मिनिस्टर ने थैलेसीमिया से बचाव की फौरी जरूरत पर जरूरी इक़दामात करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने मुआशरे को इस नाजुक मसले को तरजीही तौर पर हल करने अपने अज़म का यकीन दिलाया। इस मकसद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की पेशकश की। वज़ीर आला ने डॉक्टर एस संगीता सत्यनारायण IAS चीफ मिनिस्टर के ज्वाइंट सेक्रेटरी को इस बीमारी की रोकथाम के लिए तंजीम के साथ ताउन फराहम करने की हिदायत की। निजामाबाद नोडा के चेयरमैन केशव वेणु ने हाल ही में मेयर के शौहर शेखर के साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में बात की और उन्होंने वजाहत की कि निजामाबाद शहर में मेयर के शौहर शेखर के साथ पेश आने वाला वाक़या कांग्रेस पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं और ये सिर्फ ज़मीन से मुतल्लिक़ एक वाक़या था। अवामी नुमाइंदों और मुकामी लोगों ने बताया कि रसूल नामी शख्स ने गुस्से में मेयर के शौहर पर हमला किया कि मेयर के शौहर शेखर ने उनको दी गई ज़मीनों पर जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी तो कब्जा कर लिया था। दरअसल रसूल का कांग्रेस पार्टी से कोई हकीकी ताल्लुक़ नहीं है। दरअसल रसूल नामी शख्स शेखर का पैरोकार है। वो ज़मीन के तनाज़े पर नाराज़ था और इसने शेखर पर हमला कर दिया था। वो बोलने से पहले चीज़ों का मुशाहदा करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर कीचड़ उछाल रहे। या एमएलए केशव वेणु ने कहा है कि उन्हें हक़ाइक़ जानना चाहिए और उनके बारे में बात करनी चाहिए। చెప్పాడు కాబట్టి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలను కానీ నాయకులను కానీ ఇప్పుడు కూడా హత్య రాజకీయాలకు కానీ దౌర్జన్యాలకు కానీ మాట్లాడడం ఇది వ్యక్తిగతంగా చంద్రశేఖర్ గారిపై కోపంతో చేసిన దాడి అని చెప్పి మేము తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలుసు ఆ దాడి ఏ విషయంలో జరిగింది, ఎందుకు జరిగింది. ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో ఇచ్చిన పట్టాలను అక్కడ ఒక మూటాగా ఏర్పడి కొంత రౌడీలందరూ కలిసి ప్రతి ఒక్క ప్లాట్ను వాళ్ళు కబ్జా చేసుకొని రెండో वक्फ कमीशन के चेयरमैन बी वेंकटेश्वर राव रिटायर्ड IAS ने वक्फ कमीशन के दफ्तर में मुख्तलिफ सियासी जमातों, BC एसोसिएशनों और BC दानिश्वरों से दरख्वास्तें वसूल करने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा वक्फ कमीशन की टीम ने अब तक 5 अजला मुश्तरक अजला का दौरा किया है और लोगों, रजाकार तंजीमों, BC ज़ात की अंजुमनों और दानिश्वरों से मालूमात हासिल की हैं। उन्होंने तजवीज़ पेश की है कि इस महीने की वरंगल जिले कलेक्ट्रेट ऑफिस में अवामी इंक्वायरी की गई है और मुश्तरका वरंगल जिले के तमाम लोग कमीशन को अपनी दरख्वास्तें पेश कर सकते हैं। चेयरमैन ने कहा है कि जिले में अवाम की जानिब से गैर मुतवक्के रद्दमल आएगा और हम बहुत जल्द जिले के बाकी हिस्सों का दौरा करके तफसीलात मालूम करेंगे। उनका कहना था कि उनकी तवक्को से ज्यादा दरख्वास्तें आ रही। उन्होंने कहा है कि जात पात की मर्दमशुमारी की मुकम्मल तफसीलात हासिल करने के बाद हम उन सब को मद्देनजर रखते हुए BC को सियासी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए बगैर किसी कानूनी मसाइल के रिपोर्ट पेश करने की कोशिश कर रहे।
महबूबाबाद जिले के असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड के दफ्तर में एक सीनियर ड्राफ्ट्समैन को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। मुलजिम कालंगी ज्योति कशेमाबाई को वरंगल यूनिट से एसीबी के अहदेदारों ने दोपहर 12:35 पर इंस्पेक्टर सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड महबूबाबाद के दफ्तर से गिरफ्तार किया। उसने मुबैना तौर पर शिकायत कुनिंदा और उसके रिश्तेदार की तरफ से महबूबाबाद मंडल के गमोदोरू गांव में खरीदी गई जमीन से मुतल्लिक टिपिन रिकॉर्ड जारी करने के लिए रिश्वत का मुतालबा किया था। भैंसा के उर्दू और तेलुगु मीडियम जिले परिषद गर्ल्स स्कूल के लिए सदर मुदर्रिस गंगा प्रसाद ने अपने ज़ाती अखराजात पर 16 कंप्यूटर सिस्टम का अतिया दिया है, जिस पर शहर के कल्बी मार्केट इलाके में वाक़ जिले परिषद फ़ौखानिया उर्दू स्कूल में 8 कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल रूम का इफ्तिताह फ्लोर लीडर बल्दिया फैजुल्ला खान ने अंजाम दिया। इस मौके पर नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद अब्दुल माजिद, हाफिज सैयद कलीम, समाजी कारकुन के अलावा सदर मुदर्रिस गंगा प्रसाद और असातिज़ा जिनमें मोहम्मद वक़ारुद्दीन, सैयद सिराज, मोहम्मद गौस, ख्वातीन, मौलिमात व दीगर मौजूद थे। उसके साथ का साथ अपन भी उनका ख्याल रखना, उसका कोई कदर करना, नमाज पढ़ना, झूठ नहीं बोलना, सही काम करना। आपका पहला कदम जो पड़ता है ना स्कूल के अंदर, पहले माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप का कहना मानना। सेकंड उस्ताद। अभी मैं खाना खा रहे थे, आप लोग यहाँ गए, इससे पहले आपको दस्तरखान दिए, दस्तरखान से नहीं खाया खाना, इधर उधर खाए, हम अपनी सही हुई। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इंदिरा नगर के सोगामू में एक ज्वेलर की दुकान में चोरी का इंकशाफ किया। पुलिस ने इस चोरी का इंकशाफ किया जो इंदिरा नगर के सोगोमा में शटर काट कर की गई थी। एडीसीपी नॉर्थ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाक़े की मालूमात फराहम की। इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन की टीम, क्राइम ब्रांच क्राइम टीम और डीसीपी नॉर्थ क्राइम टीम ने 4 बदमाश चोरों को गिरफ्तार करने में अहम रोल अदा किया। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हलफ उठाते वक्त अदालती तौर पर तस्दीक शुदा जिनसी बदसलूकी के मुरतकब पहले अमेरिकी सदर होंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर जिनसी बदसलूकी के इल्जामात हैं, जिसके पेश नज़र डोनाल्ड ट्रंप अदालती तौर पर तस्दीक शुदा जिनसी बदसलूकी के मुरतकब पहले अमेरिकी सदर होंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि उनकी मुजव्वज़ा काबीना के वज़ीर दिफा, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर सेहत व इंसानी खदमात और वज़ीर हुकूमती कारकर्दगी पर भी मुख्तलिफ किस्म के जिनसी बदसलूकियों के इल्जामात हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की तरह ये सब अफराद भी इन इल्जामात की तरदीद करते हैं। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले साल जनवरी में अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697.
जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।